Good evening, everyone. Welcome to the Classroom Management webinar brought to you by SkillVeda. We are thrilled to have you for this exciting learning journey. In today's session of Classroom Management, we will understand the strategies, techniques, and method used to create and maintain a productive, respectful, and safe learning environment. A special welcome to our esteemed trainer, Ms. Preeti Tyagi, a dedicated and result-driven educator with more than 21 years of experience in the field of education to share her knowledge and insights. Yeah, welcome, Preeti. Thank you so much, Twinkle, the way you have introduced me. It's so overwhelming. Thank you. Wish you a very happy evening to all. I hope that you have set your objectives, that definitely you are going to learn something from this webinar. Say yes, no. You Good can evening, unmute yourself, yeah. Yeah, you may send smiley, message. Good evening. Okay. I am really very glad to be a part of this, some learned people. And I'm equally thrilled that I'm also going to learn from you. So please don't think that way that I'm going to teach you. So we have created a kind of a platform wherein we are designing certain, activities, certain strategies that how could we manage the classroom, because we all are teachers here. So every day in and day out that we are facing so many problems, that how to control the class. Am I correct? Yes, ma'am. So, but before that, let's get to know each other. Let's, bear that camaraderie. Let's make that camaraderie. So kindly, I want each one of you to associate one adjective with your name in message, so that I get to know that how well that you would love to describe yourself. Yeah. If they want to speak, they can also unmute themselves, na? Yes, of course, anytime. Yeah. Bharti Bold, Sweet Richa, very nice. Magical Mehak, Pretty Pooja. This is how I also used in one of the webinars. Pretty. Tall Priyanka. Okay. That's it. Ambitious Anushri. Yes. I'm looking for more. Manorma ma'am, Rekha ma'am, what about you? I would like to hear from you as well. So that we can set the tone for the day. Right. Okay, thank you everyone. This is nice. Did you realize one thing, that when I have given you the chance to select the adjective, right, to put before your name, right, the so beautiful adjective that you have chosen for yourself. Same goes with our children. Like our children nowadays, if I talk about the present generation, right, they wanted to be introduced with the kind words, I would say, with the pleasant words. So generally, whenever that you are about to enter inside the class, try and make sure that you will introduce, right, you will address them with nice names, because generally what happens that we are so tired of, we are so pissed off that we end up calling them, "Arey, tumhe nahi aayega," right? You can't understand it. No. Okay, be seated. I'll deal your class. I'll deal your question in a later while. No, this is how that it means that we are dampening the very spirit of that child. So the first thing comes first.
like that whenever we are going inside the class, address them with politeness, address them, dearly, address them with nice names. And believe me, by doing so, that you will set the tone for the day. Now, let's come to the classroom management. What is classroom management? As yes, before we move ahead, let me tell you one more thing, guys. This is not a one-way communication. That whenever you have any question in your mind, any obstacle you're in mind, or wherever you wanted to, present any anecdote or any narrative of yours, that you all are free to do it. Kindly raise. Uh, you know with your name, and that we will definitely going to address it, because as I told you in the very beginning, that we are going to construct a kind of a platform, that we are learning from each other. Maybe some of these statement can help you, maybe some of your statement can help me in further, right? So let's understand that what is classroom management. Like classroom, we'll straight away move to the third slide. That what I believe, classroom management is crucial in classroom because it supports the proper execution of curriculum. It simply does not mean that we are simply catering with the syllabus. No, classroom management is something jahan par hum apna syllabus that we are catering, right? But simultaneously we are setting the objective, and we are very mindful that how are we going to get those objectives. हमें वो objectives मिलेंगे कैसे? There are strategy. Because if I'll say कि oh, so this is a very simple job, classroom is like, I'm very strict, I can manage my class, no children comes to me when I speak in the class. No, this is not the right practice. That if children are afraid of you, no, this is not. You are a best teacher when children can approach you at any point of a time. They can come to you freely, they can share their things with you at any point of a time, राइट बिकॉज आज के जो बच्चे हैं, दे आर द इमोशनल बीइंग. आप कहोगे कि मैम पहले भी तो इमोशनल होते थे बच्चे, बिल्कुल होते थे इमोशनल, बट अर्लियर चिल्ड्रन वर डिसिप्लिन्ड एज वेल. डिसिप्लिन इट मीन्स दैट दे नो दैट हाउ टू कंट्रोल द इमोशन. आज के बच्चों को नहीं पता कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें. उनको सिंपली ये पता है कि अगर मुझे कुछ बुरा लगा है तो आई एम इन स्ट्रेस. अगर किसी को क्या है, मेरी सेल्फ इमेज इज एट स्टेक. So they know two or three words. This is how they are going to use it more often. कि अगर मेरे को कुछ बुरा लगा है तो मेरी सेल्फ इमेज, मैम मेरा तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ऐसे. तो इसका मतलब ये है कि when the dynamics are changed, so does our practice. हमें अपनी प्रैक्टिस भी चेंज करनी पड़ेगी, दैट हाउ टू डील विद द चिल्ड्रन. हमें सिर्फ दैट वी आर नॉट माइंडफुल ओनली just completing the coursework, just completing the books. No, we have to, because if we talk about the national education policy, it also says it कि हमें क्या करना है, रियल आउटकम लेके आना है बच्चों से. इट इज नॉट समथिंग कि भाई चैप्टर खत्म हो गया है तो दैट इज ओवर. रियल आउटकम कब होता है? व्हेन वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू द चिल्ड्रन. जब हम अपने आप को बच्चों से कनेक्ट करेंगे. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी हैव टू emotionally to be connected with them. We can't say, we can't leave them कि okay, the child is not happy so let it be like that. No. So हमें उनके तीन जो हमारी स्टेजेस हैं उन पर काम करना है हमारा. जैसे कॉग्निटिव, आपको सारा पता है ना कि जैसे एनईपी में बोलते हैं दैट वी हैव टू वर्क ऑन 3H. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर दी 3H? Anybody can mute and just tell me that what are the 3H? Exactly. Head, हार्ट एंड हैंड. हमें उनके हेड यानी ब्रेन पे काम करना है, इंटेलेक्चुअल पे काम करना है, हार्ट पे इमोशनल. क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गॉन आर द डेज व्हेन द पीपल वर अनमाइंडफुल ऑफ जस्ट कंट्रोलिंग द इमोशनल क्वेश्चन. आजकल की डेट में अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर लेते हो तो हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन. Right. And hand, definitely hand is that how are they going to implement that whatever they have learned. ऐसा कुछ नहीं हम उन्हें सिखाएंगे कि हाँ उन्होंने हमने that we have we have taught them absolutely abstract and they are not going to use it anywhere. Because being a language teacher, that whenever I teach them the lesson, I always begin my class just like that कि this particular lesson is not going to help you anywhere, right? But yes, the kind of message that you are coming across,
it is going to help you everywhere. तो story को आप, you may forget the story, you may forget the character, but you know the core idea you can never forget it, because and you should never forget, because ultimately you have to be very spontaneous. तो सबसे पहले what you have to do it, you have to set the class by just saying certain words ki okay, you are looking very good today, oh you are you look very cheerful today, something good had happened to you, okay that's very nice, how are the parents, like, and how are you by the way. So in that छोटा छोटे से words में जब आप उन्हें करोगे तो आपने आधा काम अपना कर लिया है. This is how it means the half of the class is already managed. Then your children will connect with you. So उसके बाद आता है, because ultimately if I'll say कि that you have to always strive for connecting with the children, that is also not going to serve the purpose, because ultimately we are the teacher, that we have to teach them as well. तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने क्लासरूम को देखना है कि हमें, I hope that what is the classroom management? Classroom management is certainly not completing your syllabus. इसका मतलब क्या है कि आपको you have to manage your class in a way wherein that you are fully aware your actions and direction, and you are teaching your children the action and directions. This is that how you have to do it, and you are also telling them the ways of doing that work. You are creating them successful environment, you are giving them the the hands-on practices, because there are two ways. Either you can be a school smart or you can make them street smart. तो आजकल हमें क्या काम करना है कि definitely we are just striving for making them the school smart as well, but we have to focus on making them the street smart. Street smart का बच्चा, जितना बच्चा street smart होगा उतना बच्चा spontaneous होगा. ठीक है, we have to create a designer mindset in our classroom. Don't think that we are going to treat the children, no, we are going to deal with the designer. We have to expand their mindset in a way. Anybody would like to say, anybody would like to interject here? As of now, I hope that you are very much clear that what you have to do, how you have to do, how you have to manage your classrooms. Ma'am, please repeat the question. I hope that, is it clear that how you have to set the beginning of your classroom? Yes, ma'am. Very, and believe me, all my dears, right, you will get to know कि जिस तरह से as soon as you are entering and you are starting your conversation, you are starting your class, oh you are looking so good today, and you are, something good had happened, okay, how are your parents going, and by the way what are you doing, what's your favorite subject, have you written any story. ऐसे random question when are you going to pull, तो एक camaraderie generate होगी, and when this camaraderie is at place, you will see the magical difference, the way children are approaching to you, the children are waiting for your class. Because I have experienced like so many times that I am blessed enough that I always been one of the most dearest teachers in every school, that wherever I went and wherever I am just going. Okay, so now designer, don't say then that we are dealing with the children. No, we are dealing with the designers, right? Why designers? Because the way we are handling them, it means that we are giving them the way to create ideas, because children are very, very intelligent. We were never been so intelligent the way that this generation is. The only problem is that they are bit distracted. हम उतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे, राइट, एंड it is not their completely their fault as well, because given the present scenarios, given the present situation, and given the present technology, they are bound to have those distractions. But still, we are the teacher, we cannot let lose our all efforts, we have to work upon that. So let's first understanding the classroom. Understanding the classroom is that there are 20 students, 30 students, and all students cannot be same. They are different in their approaches, they are different in their emotions, they are different in their dealings, right? So you have to be very, very particular about that, how individually you have to deal with them. आप एक क्लास को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं. यू हैव टू बी माइंडफुल. मेरा ये वाला बच्चा, ही इज पिकी, he is bit emotional, he is rowdy,
he's confident. I'll be just giving you certain examples that how can your classroom be. आपके क्लासरूम कैसी कैसी होती हैं. कुछ बच्चे they are so energetic, always hyperactive. Some students are good at maths, some are good at language, some are good at only communication, some are good at sports. So हर एक बच्चा, the way all the people are not same in our homes, same goes with the class. How could we expect all the children be same? अब ये भी कहेंगे कि मैम सिलेबस तो सेम ही बढ़ाना पड़ेगा, right? Undoubtedly, but strategies can be a little bit changed, like given upon the mindset of that child, that we have to moderate, we have to little bit tilt our strategy. हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए. तो हमें हमारे माइंड में पहला ही चीज ये होना चाहिए that how the classroom is going to be, a classroom is going to be full of different mindset. जैसे for an example, you might have come across with certain sort of a students, like for hyper achiever, overachiever. There is one child that who's always striving for perfection and goes above and beyond what is expected to them. Can you see that slide, please? Yes, ma'am. No, ma'am. Know your class overachiever. Is this slide? Yeah, know your class. Yes, Yes, quickly, ma'am. it's visible. Yeah. This is very important, and if you'll read it yourself and simultaneously that I am also explaining it, believe me, the more you'll consume that particular slide, the better result you can produce in your classes, right? Because यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि that you have overachiever, और overachiever बच्चा क्या होता है, who's always ready to do strive for perfection, and कुछ भी वो बच्चा कर सकता है. He can goes above and beyond कि मैं मेरे को तो बेस्ट रहना है, राइट? उसके वर्क बहुत पंक्चुअल होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है अप्रोचेस में, एंड डिसिप्लिन्ड होता है, मोटिवेटेड होता है, दैट ही और शी डजंट नीड एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, like she is self motivated. Have you come across certain students in your class? Yes, ma'am. They are So always ready to do anything. और ऐसा नहीं है कि these sort of children that you can find in the senior classes. पहली क्लास से ही, प्रेप से ही आपको ऐसे बच्चे आराम से मिल जाएंगे that they are very very mindful that कि उनको टीचर की नजर में सबसे बेस्ट होना है, दी बेस्ट वाली फीलिंग उनको आना है. ये बच्चे थोड़ा अच्छे भी होते हैं इन द बिगनिंग, वी लाइक देम लाइक एनीथिंग, बट थोड़ा सा हमारा अटेंशन उन पे बहुत ज्यादा हमें फोकस करना है, बहुत ज्यादा. मैं क्यों कह रही हूँ आपको, थोड़ा सा ये अदरवाइज साउंड होगा कि इन बच्चों को हमारे सबसे ज्यादा टेंशन की जरूरत क्या होती है, बिकॉज यहाँ पर अगर इन बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन नहीं किया गया तो दे आर गोइंग टू बी somewhere not good for themselves and to the society as well. They don't understand the importance of being failure. उनको सब कुछ सक्सेस चाहिए, और जिस बच्चे को एक सक्सेस का ही एक सक्सेस का क्रेज आ जाता है, तो वो कभी भी अपने लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, नीदर फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ और फॉर द सोसाइटी एज वेल. मैं इसको आगे भी डील करके चलूंगी, क्योंकि ऐसे आई केम अक्रॉस सो मेनी केसेस वेयर द चिल्ड्रन when the child was hell bent in achieving the success only, but एक बार कुछ उसके साथ कुछ ऐसा, he couldn't win that particular competition. And I still remember that what havoc that he has created in the school and in the home as well. तो ये overachiever बच्चे होते हैं, they deserve our attention. Underachiever बच्चे होते हैं, they are soft spoken most of the time, that you'll feel that they are soft spoken, but somehow they are struggling with motivation. उनको एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, सेल्फ एविडेंटरी है, इसमें बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं. अंडर अचीवर क्या होते हैं, दे वांट टू डू राइट बट दे कांट डू. उनको नहीं पता, उनको यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं पता है. ये इन बच्चों की एक अलग से लिस्ट आप बना लेंगे कि ये ना दीज पर्टिकुलर चिल्ड्रन राइट कम इन दैट कैटेगरी ऑफ अंडर अचीवर्स. व्हाई आई एम सेइंग सो, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन एज वेल कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द अंडर अचीवर्स, राइट? The class clown, undoubtedly every class has one or two class clowns, wherein the the children, they always
they derive kind of happiness in making other people laugh at their activities, at their work, right? They always want to have attention from people, attention from the teachers, and attention from their classmates. Am I correct? Yes, ma'am. Vijaya ji, are you able to listen us now? Is there any problem with all of you? Because they are messaging ki they are not able to listen. Am I audible now? You are, I think, yes, it's audible. Should I continue? Yeah, please, Preeti. Yeah. Okay, class clowns. So you have to recognize that who all are the class clowns. कि ये वाले बच्चे हैं, क्योंकि इस तरह का जो बच्चा होता है ना, that he needs a private attention, wherein that you can have a private sort of a conversation with that child. उसकी को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं emotionally बहुत weak होता है. All those people that who want a kind of attention by doing certain sort of an activity, उनका कोई ना कोई एक ऐसा इमोशनल पॉइंट होता है कि अगर आप इफ यू somehow that you can touch that point and you'll see the miracle, you'll see कि ये वाले बच्चे कितना अच्छा कर जाते हैं. शाई स्टूडेंट होता है, he is always hesitant to speak up in the class और participate. यहाँ भी आपको इन बच्चों पे फोकस करना है. 1 और 2 क्लास में आपको पता चल जाएगा who all are the shy students, क्योंकि इन बच्चों का अंदर क्या है कि until unless their potential is tapped, they won't come out. And if they cannot come out, to our responsibility of being a teacher is somehow that we are failing ourselves. वो हमें अपने आप को फेल बिल्कुल नहीं करना है. स्ट्रगलिंग गिफ्टेड स्टूडेंट होता है कि उनका एक नेचुरल टैलेंट होता है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, right? Though there are multifaceted student as well in the class, but gifted child is that he or she is not a problem. Good, वो average होते हैं बच्चे और वो अच्छा कर लेते हैं. Struggling student होते हैं हमारे पास class leader. Yes, class leader, that we are going to talk about the class leader. It's not necessary always कि class leader will be an intelligent child. No, class leader can also be a underachiever, right? Because leadership and intelligence both are two different things. But where we are making a mistake, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं कि ओनली द इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन बी अ लीडर. और हमारी गलती क्या होती है, प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर इफ आई एम मेकिंग अ रॉन्ग सेंटेंस, कि हम क्या करते हैं, जो बच्चा इंटेलिजेंट है दैट वी कीप ऑन गिविंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. एम आई क्लियर? ऐसा होता है हमारे साथ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मैं ये नहीं कहूंगी कि that we are wrong at that thing. No, we are not at all wrong. But the only problem is that कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत तरह के हो गए हैं. If I'll talk about my generation, that we all used to be same. या तो ये या तो this or that. आजकल के बच्चों के जो इमोशन है, they are at variation. बहुत वेरिएशन है और आपको बहुत तरह का बच्चा मिलेगा. अब बहुत तरह का बच्चा मिलने के लिए इट इज मेकिंग आवर जॉब वेरी वेरी टफ, that how to handle them. और until unless that we are going to handle them, we are not going to manage our class. Because generally that what is the kind of a wrong notion that we have कि अगर हमारी क्लास में डिसिप्लिन है तो हमारी क्लास मैनेज्ड है. नहीं, this is absolutely a wrong narrative कि discipline class is a managed class. nahi, managed class is that class wherein each and every child is doing right according to his or her talent. We are tabbing the talent of everyone. Underachiever है तो भी हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ओवर अचीवर है उसके लिए हम उसको नहीं पता चल रहा है, बट ही इज क्रिएटिंग अ थ्रेट टू हिमसेल्फ. और वो अपनी लाइफ में somehow inconspicuously that he is inviting the failure. But प्रॉब्लम क्या है, इज नॉट रेडी टू फेस दैट फेलियर. तो हमें वहां पर भी टैब करना है, राइट? हमें शाई पे भी करना है, बिकॉज अदरवाइज he will never he will never be able to speak anything. और इस दुनिया में आजकल there are two kind of people that who are successful.
right? The person with the brain and the person sharp with the tongue. So if you have these two attributes, that like that, if you are intelligent way beyond, or if you are a good communicator, it means that you are successful enough, you can turn the tide in your favor at any point of a time. तो शाई बच्चे पे हमें बिल्कुल काम करना है. I'll tell you the strategy as well. क्लास लीडर, बिल्कुल इस बात को दिमाग से बिल्कुल ही हमें निकाल देना है that only intelligent child can be a class leader. I would like to it reminds me of one incident when I was in Bank of America, right? So what happened, there used to be my boss, and one day I simply asked a question that, sir, how can we strive for the promotion, that like how are you judging the person that this person can be a leader and this, how are you managing the people? तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा आंसर दिया था. I still remember that answer. He said it कि प्रीति, listen, there are two types of there are two type of people, right? एक क्या होता है कि हमें ये देखता है कि he is not good at work but he is good at managing the things, right? वो काम किसी ना किसी तरीके से निकलवा लेता है, right? By manipulating people, by supporting people, by extracting their support, right? In all the ways हम उसको लीडर बनाते हैं, that we give that person a designation. हम उसको डेजिग्नेशन देते हैं. अनदर काइंड ऑफ अ पर्सन इज द वन दैट इज वेरी हार्ड वर्किंग, राइट? वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. वो हार्ड वर्किंग वाले का हम इंक्रीमेंट ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये इतना हार्ड वर्क है. इफ वी आर गोइंग टू गिव अ 20% 30% इंक्रीमेंट टू दैट पर्सन, तो इसका मतलब है वो हमारे 2 बंदों का काम हमें बचा के दे देगा, राइट? तो यहाँ पर इंटेलिजेंट कौन हुआ? हार्ड वर्किंग हुआ, राइट? तो उसको क्या किया उन्होंने, दूसरे तरीके से डील किया. और जो लीडर था, जो काम नहीं करता था, बस यहाँ से जाके वो रिसोर्सफुल था, उसको उन्होंने लीडर बना दिया. तो यहाँ पे दैट वी हैव टू सी बिटवीन द लाइंस. ये बच्चा लीडर है, आप उसको मॉनिटर बना दो, उसको कोई काम दे दो. शैतान बच्चा है, इनडिसिप्लिन बच्चा है, आपको आई ट्रस्ट अ लॉट, लिटिल बिट इमोशनल ब्लैकमेलिंग आई मस्ट से करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि until unless that we learn to play with their emotion in a rightful manner, we won't be able to extract we won't be able to get their potential out. तो हमें थोड़ा सा, और तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो, एंड आप देखोगे कि वो बच्चा एक्चुअली में कितने अच्छे से करेगा, राइट? लोनर होता है कि वो किसी से नहीं बोलेंगे, अपनी ही लाइक दैट ही और शी वुड बी ऑलवेज इनटू हिज ओन रेवरी, अपने ही सपनों की दुनिया में रहते हैं. बुलीड स्टूडेंट होता है, आपने देखा होगा कि ये नाम आप छोटा छोटा सा एडजेक्ट, ये फ्रेजेस आप अपने दिमाग में आपको ऐसे रखना है कि अरे ये वाला बच्चा तो ही कम्स इन दैट कैटेगरी, राइट? ही कम्स इन दैट कैटेगरी. उससे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. टीचर्स पेट होते हैं, ये ऐसे बच्चे चाहिए भी होते हैं, वेर इन दे आर ऑलवेज they keep telling you about the different kind of story and different kind of irregular activities happening in the class. मैम आपको पता है आज अदिति ने क्या किया था, राइट मैम, ये किया था. तो ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं. बट यहाँ पर हमें दैट वी शुड नेवर बी हैप्पी एंड वी शुड नेवर बी अपीज्ड विद देयर बिहेवियर. हमें इनका लग रहा है कि धीरे धीरे दे आर डेवलपिंग अ काइंड ऑफ अ टेंडेंसी विच इज अगेन नॉट गुड फॉर देम, फॉर गुड फॉर these sort of students. क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, एक they forget their real aim, और वो क्या कर लेते हैं कि वो क्या है, somehow they are fed on these type of a thing. और उनका ये, क्योंकि एज ऐसी है कि जिस भी हैबिट को ज्यादा करेंगे वही उनके अंदर बनती चली जाएगी. तो आपको ये करना, अच्छा बेटा, ओके आई हैंडल, ओके तुम क्या करना कि अब से नाउ यू विल नॉट फोकस ऑन दिस थिंग, यू विल कीप. धीरे धीरे एक एक बच्चे को ये डिफरेंट, आपको अपनी क्लास के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, बट किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को अपना पेट ना बनाए, बट कि धीरे धीरे उस बच्चे को एक बार, अच्छा बेटा वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब, you have let me you have informed me, thank you very much, and now just be with your work and you keep doing your work, okay. अब किसी दूसरे बच्चे से आप कोई दूसरा काम कराइए. सो इन दैट वे व्हाट आर यू डूइंग, जो हम बहुत ही हमने आज तक कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, वी आर नॉट लेटिंग देम टू इन अ हैबिट that will flourish,
इन फ्यूचर, और जो उनके लिए डेंजरस हो जाएगी। हर एक बच्चे को हम हैबिट नहीं दे रहे हैं, हम उनको एक टास्क दे रहे हैं। अब ये टास्क हो जाएगा, बट जब हम उनको एक ही बच्चे को बार बार तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये पता करना है, तुम्हें बच्चे का नाम लिखना है, तो हम उनकी हैबिट डेवलप कर दी, जो हम अनजाने में ही सही, बट वी आर क्रिएटिंग एंड वी आर क्रिएटिंग अ हार्म टू देम। Is it making a sense, everyone? Please write it something. Please write everyone. अगर आप यहाँ पे डिसएग्री करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, so that we can further talk on this. Bharti ji is saying, can you repeat the question? My question was that when I said कि there are certain students that who are always teachers pet, they keep informing the teacher about different kind of an activities taking place in the class. मैम आज आपको पता है साहिल ने क्या किया, मैम आज आपको पता है महक ने क्या किया, है ना। तो वो एक ही बच्चा बार बार आके आपको, the person will keep telling you the different thing. बट हमें तो ये लग रहा है कि ये बच्चा हमारा अच्छा है, बच्चे ने अच्छी बता दी, पर आपने बीइंग अ टीचर, आई एम क्रिएटिंग अ हार्म टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, आई एम फेलिंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर दिन मैं उस बच्चे को उस हैबिट में लेके आ रही हूँ कि फ्यूचर में जाके वो इसी तरह की एक्टिविटीज पे फीड होगा, दैट ही विल लर्न दैट। मेरा पर्पस उस बच्चे को गलत चीजें सिखाने का बिल्कुल भी नहीं है, बट धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ, अपनी ही क्लास को खुद ही अनमैनेज कर रही हूँ। मैंने क्योंकि अपनी उस क्लास से एक बच्चे का अनमैनेज कर दिया, एक बच्चे को ऑल द रॉन्ग रीजन सिखा दिए हैं। यस, बिल्कुल, अदर चिल्ड्रन बिल्कुल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करे, ये फेथ आप सारे बच्चों को दिखाइएगा, एंड कभी हम दोबारा कनेक्ट होंगे तो यू विल टेल मी फर्दर कि मैम यू वर राइट। आप छोटे, आज मीनाक्षी, टुडे यू विल टेल मी दैट व्हाट हैड हैपेंड इन द क्लास व्हेन आई विल बी आउटसाइड। कल को आपके किरण, यू हैव टू टेल मी दैट। आपको धीरे धीरे दैट वे यू आर अर्निंग द ट्रस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बच्चों को लगेगा, बिल्कुल बताती हूँ मैम आपको, सम मोर वेज टू मेक स्लो लर्नर्स क्वाइट एंड कंसंट्रेटेड इन द क्लास। इसके लिए एक सबसे अच्छा चीज क्या होता है, आप जो स्लो लर्नर होंगे ना, उनको कोशिश कीजिए कि जो क्विक लर्नर होगा उसके पास बिठाएं। क्योंकि हमारा वो क्या होता है कि एक बड़ी अच्छा बोलते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट what we are connected with the kind of a people, yeah, we are the mixture of 5 people that we are surrounded by। हम 5 लोगों का ऐसा मिक्सचर होते हैं जिनसे हम ज्यादातर अपनी लाइफ में कनेक्ट करते हैं। वो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, ज्यादातर फ्रेंड ही होते हैं इस एज में। फिजिटी वंस, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको आप क्या कीजिएगा, आप चेंज देखोगे, कीप कनेक्ट विद द चाइल्ड। जो स्लो लर्नर है उसको क्विक लर्नर के पास बिठाइएगा, 1 हफ्ते बिठाइएगा, 2 हफ्ते, धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर, मैं ये नहीं कहूंगी कि रातों रात ओवरनाइट ही विल लर्न सो मेनी थिंग्स, बट उसके अंदर एक एक हैबिट धीरे धीरे आने लगेगी। यार इतना जल्दी कैसे कर लेता है, एक दिन में नहीं बोलेगा वो, लेकिन अगले दिन वो उस बच्चे से डेफिनेटली दैट ही इज गोइंग टू आस्क हाउ डू यू लर्न इट, अच्छा इसमें क्या था। हो सकता है वो सेकंड डे भी उस बच्चे से ना पूछे क्विक लर्नर से, बट थर्ड डे स्लो लर्नर विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू द क्विक लर्नर, हाउ डू यू डू इट बाय द वे, हाउ हैव यू अंडरस्टूड इट। तो आप उसको ये वाली प्रैक्टिस कीजिएगा कि स्लो लर्नर को आप क्विक लर्नर के पास बिठाना स्टार्ट कीजिए, और क्विक लर्नर को मोटिवेट कर दीजिएगा। तुम्हें पता है, धीरे बुला के, तुम्हें पता है कि व्हाई आई लेट द चाइल्ड सिट विद यू, क्योंकि आई ट्रस्ट यू, मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे वो तुम्हारी कंपनी में रह के ना ही विल बी लाइक यू। अब वो छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, इतनी बात आप उन्हें बोल दोगे ना, तो बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, उनको ये लगेगा यार इसका मतलब तो आई हैव गॉट समथिंग। तो वो पर हाँ, तुम्हें क्या करना है, डोंट लेट द चाइल्ड फील फील कि यू नो एवरीथिंग। तुम्हें उसको ऐसे दिखाना है तुम्हें कुछ नहीं पता करना, थोड़ा बातों को हमें ज्यादा करना पड़ेगा, बट आपको चेंज भी आप देखोगे अपनी क्लास में। विल दैट वर्क फॉर यू?
आपका भारती जी, एज अ टीचर वी विल फेल टू अंडरस्टैंड द क्लास, वी विल कीप कनेक्ट विद वन चाइल्ड. हमें कनेक्ट एक बच्चे से नहीं करना है, कनेक्ट हमें सारे बच्चों से करना है, बट यू नो द स्टाइल इज डिफरेंट. आई नो दैट इज गोइंग टू बी अ tedious job, but believe me that is going to be a tedious job for only 1 month, right? धीरे धीरे within that span of a period, children will understand you and you will also understand the children. Is it a good thing that students are frank to me? They don't ask permission to roam here and there. What to do? Make them sit on their place with focus on the blackboard. नहीं, it is very good that we are frank. बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दैट फ्रैंक का मतलब ये नहीं है दैट वॉट एवर दे फील लाइक डूइंग इट. वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर टू बी डन इन द क्लास, right? Or there are certain things that you don't need my permission. Suppose that you are helping a child, so in a class, and you're politely going and approaching that child, you can go there, I don't mind it. But आप ऐसे roam करोगे तो roaming is definitely a part of being indisciplined. तो मैं नहीं चाहती कि आप indisciplined होंगे. ऐसे आप बच्चों को, बेटा आपको पता है what have you done, right? You are creating indiscipline in the class and you are my good child, I don't want you to learn that habit, right? You will keep telling them certain, जैसे रिसेंटली मैं एक पूजा में थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली कि ठीक उन्होंने ऐसे बोला इसको ऐसे, लेट मी फ्रेम इन दैट वे कि डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शासन एंड अनुशासन? Can tell me anything? मुझे बहुत पसंद आई ये बात, and I at the very particular moment that I thought that I'm going to use it in some of my webinars, that कि what is the difference between शासन and अनुशासन? Can anybody tell me? बिल्कुल आपने सही कहा है कि शासन इज रूल, जहां पर क्या होता है कोई चीजें हम पे देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर फोर्स्ड अपॉन अस, राइट? अब आप मुझे, आप क्या चाहते हो, क्या मैं कैसी टीचर बनूं कि मैं आपके ऊपर शासन करूं या मैं आपको अनुशासन सिखाऊं? तो बच्चे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पिक अनुशासन. एम आई करेक्ट? देखो अगर बच्चों देखो आपको शासन सीखना है तो ये है दैट आई विल हैव दैट थिंग इन माय माइंड, आई विल पुट सर्टेन रूल्स इन द क्लास कि कोई नहीं जाएगा until unless you don't ask me anything. तो वो होगा शासन, जहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, बिकॉज आई एम योर क्लास, आई एम योर टीचर, सो यू हैव टू डू what would I say to, what would I ask you to do. ये तो हो गया शासन. अब आप क्या चाहते हो? अनुशासन. अनुशासन में क्या है, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड, राइट? अब वो अपने आप ही अनुशासन बोलेंगे, जैसे ही उन्होंने अनुशासन बोला यू जस्ट पिक देम अप कि देखो दिस इज योर चॉइस. इसका मतलब जो अच्छा है आप वो वही सिलेक्ट कर रहे हो ना, आपने शासन तो नहीं सिलेक्ट किया. तो इसका मतलब है आपको पता है अच्छा क्या है. तो अब नाउ यू जस्ट टेल मी, रोमिंग हेयर एंड देयर कम्स एज अ गुड एक्टिविटी और एज अ पार्ट ऑफ बीइंग इन डिसिप्लिन? अब वो अपने आप आंसर दे देंगे. उन्होंने आंसर दे दिया तो बस यू विल जस्ट कैच होल्ड ऑफ देम कि बेटा अब आप बताओ कि वर यू डिसिप्लिन्ड और वर यू इनडिसिप्लिन्ड. थोड़ा सा हमें अपने एक एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर आपको बहुत अच्छे आंसर चाहिए तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी होने चाहिए, राइट? तो हमें क्या करना है कि अगर हमें उनसे टेक्निक यूज करनी है तो हमारा जो पूछने का तरीका होगा वो हमें थोड़ा सा मॉडिफाइड, रेदर देन जंपिंग ऑन टू द स्ट्रेट गन कि तुमने ऐसा किया तुम तो इनडिसिप्लिन बच्चे हो गए हो. दे विल नॉट लाइक इट. हम इसको क्या सकते हैं, अच्छा बेटा एक बात बताओ, सपोज दैट इफ आई वर एट योर प्लेस, मैं और आप टीचर होते एंड यू वर एट माई प्लेस, मैं आपसे नहीं पूछती, मैं जहां मेरा मन करता मैं जाती, लाइक वुड यू लाइक इट? वो अपने आप ही एम्बैरेस होकर कहेंगे नो मैम. कहते तो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई लाइक इट? राइट मैम, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Yes, ma'am, and you answered it very beautifully. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच. नाउ द स्लैकर, आप उनको कोई भी काम दे, दे आर ऑलवेज लेकरडेसिकल, ऑलवेज लेजी, दे विल नॉट टेक देयर स्टडी सीरियसली. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट व्हेनेवर दैट यू आर गेटिंग टू बी इंट्रोड्यूस विद देयर पेरेंट्स, आप उनको पूछोगे थोड़ा सा, हमें बियॉन्ड द एकेडमिक्स जाना होता है. व्हाट डज ही ईट?
हमेशा बहुत आलसी रहता है बच्चा। व्हाट डज ही टेक एज अ लंच डिनर, आप ये तो वो बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि फूड का भी इफेक्ट आता है। वो आपको सही बता देंगे मैम तो वो तो सब्जी ही नहीं खाता है, ही डजंट गो फॉर फ्रूट, ही डजंट गो फॉर समथिंग हेल्दी। ये रीजन होता है, उसमें गलती आपकी नहीं होती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी आर इन हैबिट ऑफ जस्ट पुटिंग ब्लेम ऑन आवरसेल्व्स कि हो सकता है टीचर्स अच्छा ना पढ़ा सकते हो सकता है पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हो। Preeti, यहाँ there पर is क्या a होता है? question of Pooja हाँ हाँ in the chat box. मैम, गुड चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू सिट विद स्लो लर्नर, फिर भी अरेंज देम टू सिट वी गेट कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द गुड। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने अगर जब मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था कि आपको जो क्विक लर्नर है, यू हैव टू कॉल दैट क्विक लर्नर टू यू। आपको उसके अंदर ये इन्फ्यूज कर देना, बेटा आपको पता है मैंने इसको क्यों बिठाया है, आई लेट देम टू सिट विद यू विद अ पर्पस, क्योंकि आप वो बच्चे हो जो डेफिनेटली इसके लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटीज इतनी अच्छी हैं। आपको ना उस बच्चे को मोटिवेट करने का, और आप यू जस्ट टेक माय वर्ड्स, वो बच्चा घर जाके बिल्कुल ही नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको हमेशा के लिए बिठा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप इस बच्चे की लाइफ में दैट यू वुड ब्रिंग सम डिफरेंस इन दैट, अल्टीमेटली दैट ही इज योर क्लासमेट ना। आप इस बच्चे के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी डालोगे ना, तो ही विल स्टार्ट बिलीविंग यस आई कैन डू इट। अगर मेरी मैम इज कीपिंग दैट फेथ इन मी, सो इट मीन्स दैट यस आई एम केपेबल इनफ कि मैं इस बच्चे को आज, आपको क्या ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको 2 दिन बता दो, इसको थोड़ा मोटिवेट करो, वर्क करता है। आई यूज्ड इट। यू मे कॉल मी लाइक कि मैम ये तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, हो तो जाता है बट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दैट वी आर डूइंग फॉर आवर चिल्ड्रन ओनली। और हमारे लिए सारे बच्चे, आप देखोगे द वॉट एवर स्ट्रैटेजी दैट आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट वन चाइल्ड सेंटर्ड, राइट, वन चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है, सारे बच्चों को लेके चल रहे हैं। और अगर एक जैसी स्ट्रैटेजी करेंगे, हम कभी भी क्लासरूम को मैनेज नहीं करें, नीदर वी कैन यील्ड द लर्निंग आउट ऑफ देम। हैव आई आंसर्ड दैम मैम? आप एक बार इसको करके देखिएगा एंड यू विल फील द डिफरेंस कि वंस यू विल मेक दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम लेटिंग दैट चाइल्ड सिट विद यू इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्वालिटीज, बिकॉज यू कैन डू इट। तो उस बच्चे को दैट बच्चा विल फील दैट द प्राइड इन हिम कि यार अच्छा, तो मैम बिलीव्स इन मी एज वेल, यस आई एम जस्ट लाइक दैट, आई कैन अमेंड, आई कैन ब्रिंग सर्टेन अमेंडमेंट्स इन दैट चाइल्ड। आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कभी कि इट वर्क फॉर यू। यस, सो नाउ द स्लैकर्स, उनको क्या क्या उनका डेफिनेटली आप उनके थोड़े से कभी भी उनके पेरेंट्स से बात कीजिएगा, या सम टाइम व्हाट डू यू ईट बाय द वे मैम, व्हाट डू यू फॉन्ड ऑफ, क्या खाते हो आप खाने में। बच्चा अपनी फूड हैबिट बताएगा, आप इसको भी लिख के देख लीजिएगा, आपको ऐसी फूड हैबिट्स बताएगा जो लेथर्जी लेके आएंगे उसके पास। तो धीरे धीरे उसको एक काम करो, डिडंट यू ट्राई दिस थिंग, आप इडली ट्राई करके देखो, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बच्चों को तुम सीखते नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, वो यहाँ पर उसका आलसी होना, वो ही इज नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट। आप उनको देखोगे कुछ रीजन जरूर होंगे, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। mediocre students, they can be they can excel in any particular subject, so mediocre students are not a problem anyway. Smart aleck, again, right, for all the wrong reason I would not call them smart. वो दे ऑल नोइंग पर्सन, बस मैं उनका अंदर ये रहता है। जैसे होता है ना कि नार्सिस्टिक जो होते हैं, कि जिनके अंदर ये होता है सेल्फ ऑब्सेशन, एक होता है सेल्फ लव। हमें वहां पर डिफरेंस बताना पड़ेगा कि बेटा सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन। जो स्मार्ट एलेक होते हैं ये किसी को नहीं बोलने देंगे, आप क्वेश्चन पूछो एंड दे विल से मैम आई नो आई नो आई नो, आप उनमें क्लास में बोलोगे ऑलवेज दैट यू नो एवरीथिंग, राइट। तो उसका उनका, क्योंकि उनका जो ना इमोशन हैंडलिंग होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत सटल होगा। दे वोंट समहाउ, दे वोंट टेक योर वर्ड्स, राइट, दे मे कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स। आप उनको बुला के वही एक बार बात कीजिएगा, सिर्फ एक बार उन्हें बुला के, जब आपको लगे कि यार ये वाला बच्चा इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट एलेक, कि यस आई नो एवरीथिंग, आई एम ऑल नोइंग पर्सन, रेस्ट ऑफ द पीपल आर दे आर दे आर नथिंग। उसको एक बार अपने आप बुला के पर्सनल लेवल पे, बेटा आपको यू आर वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू नो एवरीथिंग, बट डोंट यू रियली थिंक दैट पीपल ऑल्सो द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो डिजर्व टू नो, है ना। मैं आपको क्लास में नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज आई लव द वे यू आर ऑलवेज रेडी टू आंसर ना, बट आई एम द टीचर, आई हैव टू गिव द चांस टू अदर्स एज वेल। तो कल से आप डेफिनेटली आप किसी और को दोगे ना चांस,
बच्चा अपने आप ही कर देगा। लेकिन अगर आपने उसको क्लास में डांट दिया, व्हाई ऑलवेज दैट यू नो एवरीथिंग मैम, आई वुड लाइक टू आंसर, सो समहाउ दैट यू हैव अटैक्ड द वेरी इमोशनल बीइंग। एम आई करेक्ट? विजया जी, विजया जी इज राइटिंग कि हाँ, आई हैव डन दिस tactic, but slow learner don't turn a bright student give them homework, but slow learner don't do it। बिल्कुल ठीक है, वो नहीं करेंगे इतनी जल्दी, स्लो है तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जल्दी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। I think, Preeti, we have to motivate both kids, not the fast learner, but the slow learner also. हाँ राइट, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि वो हाँ, स्लो लर्नर है तो वो नहीं करेंगे एकदम से, हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि क्विक के पास बैठ गए एंड सडनली दे डू इट, है ना, दे क्रिएट दी मैजिक। नो, नहीं करेंगे। अब हमें उससे क्या करना है, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, इसलिए मैंने कहा 1 हफ्ते का टाइम तो आप लेके चलिएगा कि 1 हफ्ते बिठाएंगे। 1 हफ्ते में आपको चेंज जरूर नजर आ जाएगा। जब वो उसने एक दिन काम नहीं किया उसको पनिश मत कीजिएगा, we राइट। can give the rewards also. कि we will give you a star and good and something like that. ये उस पर्टिकुलर को ना कह के क्लास में अगर हम एकदम से करें Yes. तो एक तो हमारा क्लास का द इंटायर मोरल ऑफ द क्लास इज बूस्टेड अप। सारी क्लास के बच्चे करेंगे तो हमारे लिए विन विन कंडीशन हो जाएगी। एक तो सारे बच्चे करेंगे, दूसरा क्या है, जो पर्टिकुलर स्लो बच्चा है उसके मन में जरूर आएगी। जैसे मेरे से ना एक क्वेश्चन पूछा था, आई वेंट फॉर दी ऑफलाइन की मैम बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट कैसे क्रिएट करें, है ना। तो मैंने कहा आप उन्हें बुक पढ़ाइएगा। एंड देन टीचर आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि व्हेनेवर वी आस्क देम टू रीड अ बुक, व्हाट डू दे डू, दे जस्ट मग अप द समरी एंड दे जस्ट टेल अस, है ना। तो मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद इट, नथिंग से समथिंग पे आए ना वो, एटलीस्ट वो कहीं बुक नहीं पढ़ रहे, समरी तो पढ़ी उन्होंने। Are you getting my point? So something is always important. If we'll keep taking care of the small things, big thing will fall in place. लेकिन हमारी गलती क्या होती है, हमने बच्चे को उसको बिठा दिया, 1 2 दिन 3 गए, हमने कहा ये तो काम करता ही नहीं, बैठो जस्ट बैक टू योर प्लेस। नहीं, नहीं करेगा वो 3 दिन में भी काम, 4 दिन में भी नहीं करेगा। वी हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट विद दैट चाइल्ड कि वो स्लो लर्नर है, वो हमारी बात को भी स्लो समझेगा, वो उस पर्पस को भी स्लो समझेगा कि वाई वी हैव लेट देम टू सिट विद दैट चाइल्ड। हमने वहां पे कर दिया। अब छोटी सी कन्वर्सेशन हम इस बच्चे के साथ कर लेते हैं कि बेटा आपको पता है कि क्यों बैठाया, बहुत अच्छा है, आदित्य इज वेरी गुड, राइट। आप थोड़ा थोड़ा सीखो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल क्रिएट मैजिक ओवरनाइट, बट थोड़ा थोड़ा सीखो। वो थोड़ा थोड़ा ही हमें सिखाना है। देखो मैम, जब हम दैट व्हेनेवर वी प्रिपेयर आवर किड्स फॉर द बोर्ड क्लासेस, जैसे 12th को मैं पढ़ाती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हम दैट वी क्रिएट दैट लिस्ट कि ये वाला बच्चा मेरा फेल है, right, it means that child, that I have to bring that child for the passing marks, क्योंकि ये फेल हो जाएगा। उसके लिए मैं ये वाली स्टेज की ये बच्चा हैज टू अचीव टू बी पास्ड। एक होता है मेरा बच्चा 40% वाला है, मुझे पता है पास हो जाएगा, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट चाइल्ड। अब मेरी स्ट्रैटेजी उस बच्चे के साथ रहती है कि 40% वाले को एटलीस्ट मैं 60 65 तक ले जाऊं, उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, राइट। दो, एक बच्चा आ गया है मेरा, वो 60 पे जाता है, 65 वाला बच्चा मेरा डेफिनेटली, मैं आई कैन पुल दैट चाइल्ड टू 70 72, राइट। बट अगर मैं उसे पुल नहीं करूंगी तो वो 60 पे ही रह जाएगा। और एक बच्चा मेरा टॉपर है, उसको मुझे मोटिवेट करना है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे बनाओ दैट इट विल बूस्ट अप योर परसेंटेज एंड साइमल्टेनियसली दैट यू विल बी यू विल बी इक्वली गेट द गुड मार्क्स इन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश विल बूस्ट योर परसेंटेज, तो उसको आप डेली थोड़ा थोड़ा सा उसके ब्यूटिफिकेशन पे काम करो। दिस इज हाउ दैट यू कैन अर्न इट। तो आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। मुझे उस स्लो बच्चे से बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी है, बट मुझे उस स्लो बच्चे से इंप्रूवमेंट की उम्मीद करनी है। इज इट, विल दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. सो ये स्मार्ट एलेक को आपको देखना है, इसको आप कोने में ले जाके आराम से, राइट। ये क्योंकि बच्चा क्विक वेटेड जरूर होते हैं, हंस हंस के बात कर लेंगे, लेकिन उनका जो विट है वो उतनी फ्रेजाइल होती है, क्लास के सामने कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे, पेरेंट्स को कंप्लेन कर देंगे। आप उनको एक स्टाफ रूम में बुला के करो कि अरे ये देखो मेरा ऑल नोइंग पर्सन, एंड नाउ लेट मी टेल यू, दूसरे दो दे डिजर्व टू नो। द न्यू किड बच्चा आता है, उसको ट्राई टू ट्राई टू मोटिवेट दैट चाइल्ड टू जेल अप विद द किड्स। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे अपने आप करने लगते हैं बच्चे।
ट्रांसफर, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, स्ट्रगलिंग रीडर। अब ये रीडर वाला इनको क्या है, जैसे आपको नो मैटर विच सब्जेक्ट दैट वी टीच इन द क्लास, बट रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, इफ यू मोटिवेट देम। देखो एक होता है, एक ना देयर इज अ टर्म वी कॉल इट information asymmetry. We call it information asymmetry. Information asymmetry क्या होता है, ये आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करो एंड इट विल यील्ड द बेनिफिट। इसमें क्या है कि बच्चों को ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वे दे ऑल्सो प्रैक्टिस दैट स्ट्रैटेजी। व्हाट इट इज, इसमें होता है कि जैसे बच्चों को बताना कि आपको दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली एक इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए। Same we have to apply this on ourselves. Suppose that I'm a math teacher, that I teach math in my class, right? तो इसके साथ में मैं आपको उनको ये भी कह सकती हूँ, oh, you're very good at maths, है ना? What about your reading? Do you read? Right? What have you read last week? ऐसे कुछ करके आपको, अच्छा, did you read that newspaper? Did you read that news that wherein something has happened? आप उनसे एक चीज थोड़ा सा, मैंने ये चीजें देखी भी है, एक बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम दैट वी आर ओनली कन्फाइंड टू आवर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ये गलती कर देते हैं हम। वहां पर एक लैंग्वेज टीचर क्या होता है, वो इधर उधर जाता है। एक फिजिकल जो पीटीआईज होते हैं, दे आर फेवरेट, है ना? तो बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो दे लेट लूज द चिल्ड्रन कि भाई ये खेल लो वो खेल लो ऐसे करके। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि जो पीटीआईज होते हैं, व्हाई दे आर ऑलवेज फेवरेट्स to the students, why the children are so desperate to go in that period, क्योंकि वहां उनको एक लिबर्टी मिलती है। अब लिबर्टी, अब हम अपने सब्जेक्ट में लिबर्टी तो दे नहीं सकते, बट एटलीस्ट दैट वी कैन गिव देम इंफॉर्मेशन असिमेट्री, जहाँ पे थोड़ा बहुत हम उनसे पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लिया। जैसे उनको कह रहे द पॉलिटिकल साइंस शुड बी द हाफ बिजनेस ऑफ एवरीवन, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका मास मीडिया हो। अब वो बच्चे बोलेंगे क्यों मैम? देखो आपको अपने राइट्स पता चलेंगे अनटिल अनलेस दैट यू आर अवेयर अबाउट योर राइट्स। आपको रिट्स पता होनी चाहिए। एक इंफॉर्मेशन आप भी अपने आप में गेट करो, जैसे आप गूगल करो कि साइकोलॉजिकल टर्म्स, ऐसे गूगल करेंगे कोई ना कोई टर्म्स आपके सामने आ जाएगी। वो टर्म आपको पता है ये वाली टर्म क्या करती है? जैसे एक नज थियोरी है, आपको नज थियोरी, एनीबडी नोज व्हाट इज नज थियोरी? मैं स्पेल आउट करती हूँ। ये छोटा छोटा सा इस तरीके से आप खुद में भी अपना पे चेंज देखेंगे। आप सिर्फ गूगल आपको करना है, दैट यू हैव टू गूगल इट आउट, व्हाट आर सर्टेन थियोरीज व्हिच आर इन वेग दैट थ्रू व्हिच वी कैन हैंडल द किड्स। तो वहाँ थियोरीज के नाम आएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल नज थियोरी है, वेरी वेरी नाइस थियोरी, एंड नॉट एग्जैक्टली बिहेवियरल नहीं है। नज थियोरी का मतलब है दैट वॉट एवर वी वॉन्ट टू टीच आवर किड्स, दैट वी हैव टू पुट दैट थिंग्स इनटू देयर व्यू। जैसे सपोज करो मुझे बच्चों को रीडिंग के लिए मोटिवेट करना है, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ क्लास लाइब्रेरी, है ना? और जैसे खेलते जा रहे हैं बुक को उठा के, अच्छा ये वाली बुक, तो अगेन एंड अगेन इफ आई एम शोइंग समथिंग, तो दे आर टेंड टू ग्रो देयर इंटरेस्ट इनटू इट। वो जरूर अपना इंटरेस्ट उसके अंदर शो करेंगे। जैसे आपको ये होता है ना, जैसे हमारे सामने दैट वी ऑल आर फीमेल्स, सो कोई गंदा सा घर का कोई पार्ट दिखता है और वो गंदा दिखता रहता है, तो तब तक हम उसको साफ कर, क्या वाला पार्ट गंदा है इसको साफ करना है, उसको आज नहीं करूंगा, संडे को इसको जरूर साफ करूंगी या मैं इसको मैनेज करूंगी। वो नज थियोरी का ही पार्ट है, क्योंकि समहाउ दैट यू आर कमिंग इनटू द व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू मेकिंग गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। सो ऐसे ही जो बच्चों को हमें पढ़ाना है, अगर हमें उन्हें मैनेज करना है, तो हमें मैनेज के टिप्स देने पड़ेंगे, वेर इन दे विल हेल्प यू इन मैनेजिंग एवरीबडी, ईच अदर। सो आप नज थियोरी पे काम कर सकते हो। आप खुद भी बोलेंगे, एक इन्फॉर्मेशन आप उन्हें फालतू बताइएगा, दूसरे सब्जेक्ट की बताइएगा। जैसे मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, जो कि मुझे फिजिक्स का पी भी नहीं आता होगा, बट सम टाइम दैट व्हेनेवर वी डोंट डू एनीथिंग क्लास, दैट आई कीप गोइंग टू देम, अच्छा बताओ ना फिजिक्स में क्या होता है। आप किसी बच्चों से ये पूछ लो, तुम मैथ्स बहुत अच्छा है, मतलब दैट व्हाई डू यू लाइक मैथ्स सो मच, व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग हैव यू लर्नड। एक दो चार बार आप ऐसी कॉन्वर्सेशन उनसे करोगे ना, दिल स्टार्ट टेलिंग यू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स।
और camaraderie जनरेट होगी, क्लास अपने आप मैनेज होती है. They will look forward coming to your class. इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हो गए हैं हमारे, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वी हैव टू मोटिवेटेड. हाउ टू डील, अब आते हैं इस पे. ओवर अचीवर को आपको क्या करना है, इनकरेज देम टू टेक ऑन लीडरशिप रोल्स, प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड एडवांस. अब डू यू रिमेंबर दैट आई सेड इट इन द बिगिनिंग एज वेल कि जो हमारे ओवर अचीवर होते हैं दे आर डेंजरस टू देमसेल्व्स एज वेल. उनको आप लीडरशिप रोल दीजिएगा, उनको आप हार्ड रोल दीजिएगा, क्योंकि अगर वो फेल होते हैं सो दे लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फेलियर एज वेल. अगर अनटिल अनलेस दे लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलियर, तो वो क्या होगा, नार्सिस्टिक हो जाएंगे, ऑब्सेशन आ जाएगा उनके अंदर कि दे वांट ओनली द परफेक्शन. आप अंडर अचीवर होते हैं, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ देयर अंडर अचीवमेंट, क्यों है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा. जैसे आपने बताया कि मुझे पता है ये बच्चा मेरा फेल होगा, बस मुझे उतना काम करना है कि ये बच्चा मेरा पास हो जाए. अगर मैं ये सोचूंगी कि यार ये वाला बच्चा तो मेरा 75 पे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रैटेजी ही नहीं सही बनाई है, ये मेरा बच्चा कभी नहीं आएगा उतने पे. एक बार में मैंने क्या है, दैट आई हैव ब्रोकन द स्टेप्स इन बिटवीन. तो मुझे क्या करना है, वो बेबी स्टेप को चढ़ाना है, धीरे धीरे स्टेप. भाई मेरा बच्चा स्लो है, मेरा बच्चे का रूट रीजन है, इसको समझ ही नहीं आता. जैसे मैं लैंग्वेज टीचर हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं दैट इन माय प्रीवियस स्कूल दैट वी यूज्ड टू बी एसोसिएटेड विद पीएम मोदी का एक स्कीम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो वहां पर हमारे पास लगभग दैट वी यूज्ड टू हैव 200 गर्ल्स फ्रॉम द झुग्गी झोपड़ी वाले और दीदी के इनके बच्चे थे, और स्कूल हाई फाई स्कूल था, तो उनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी. दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड माई क्लास. उन्होंने स्पेशली दे वेंट टू प्रिंसिपल मैम की कि मुझे, हमें प्रीति मैम, हमें नहीं आता है प्रिया मैम का ऐसे समझना, मैं प्रीति मैम को, बिकॉज मैं क्या करती थी, आई ऑलवेज ट्राई टू बी गेट इन टू देयर शूज, कि ये वाला बच्चे जब इसको इंग्लिश ही नहीं आती है, नो मैटर दैट हाउ फास्ट एंड दैट हाउ बम्बार्डेड लैंग्वेज दैट विल बी यूजिंग, इट विल बी ऑफ नो यूज. तो आई ट्राई, जैसे मुझे उनका है कि 12th में रिपोर्ट राइटिंग है, तो मैं रिपोर्ट, बेटा सी ये लाइन याद कर लो, दिस इज हाउ दैट यू आर गोइंग टू डू इट, आप ये ऐसे आएगा, इसको इतना सा लिटिल सा मॉडिफाई कर दो. एम आई मेकिंग अ सेंस? प्लीज मैसेज. उसके बाद I'll unmute each one of you wherein that you can ask the question, but simultaneously please write it down कि अभी तक ऐसा कुछ आपको लगा है wherein that you are not agreeing, right, कि ma'am no this will not work. Everything will work. In fact, maybe this will help you. Long back there used to be a girl in my class, Janvi Yadav. I still remember the name of that girl, Janvi Yadav. She was obsessive for online games, right? So I happened to be in a PTM, right? I happened to meet her auntie, and mama nahi thi unka because they were separated. So like I said it, and her aunt started complaining, pura time online game mera, we don't understand exactly what does she do. She was in 10th, right? It's been 6 to 7 years now. So I asked from the children as well, student, ma'am Janvi to pura raat soti hi nahi hai, she is always active on online games. I loosely I said it, Janvi, you are in 10th, you are in board class, tumhe meri kasam hai, like swear on me that you are not going to play it for 2 years, right? So she said that, ma'am, I can't live. मैंने कहा नहीं नहीं, and I forgot long back. Once she has done that 12th, she sent me a message. Preeti ma'am, do you remember? मेरे को इतना number was not saved in my phone as well, so I said it, no. So ma'am, Janvi, नहीं, she started like that. मैम अब तो अपनी कसम उतार दो. And I was just like that, कौन सा वाला कसम, like she's talking about. मैम जानवी यादव, and मैम आपने कसम दी थी कि 2 साल, now I have got 95% bio student, and now please आप बोल दो कि अब you can play. I want to play that online game because I was so desperate. And I started crying as well. There were tears in my eyes, and I said it कि what sort of a child that she is. Even if I'll say the same things to my own kids, they are not going to sustain it. But what about that child?
So, gradually that I understood it. The way we are understanding our class students, they're so emotional. If we are, handling them with the, emotional, with the emotions involved, they are going to do everything for us. You need not to ask them, sit down, stand up. No, beta, is it right the way you are doing it? I don't think it. If you were at my place, थोड़ा सा हमें अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, इमोशन भरने पड़ेंगे उसमें. अब ये भी नहीं होगा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन थ्रू द इमोशन. अगर नहीं होता है तो नाउ वी हैव ऑल द राइट रीजन टू जस्ट गेटिंग द मैनेजमेंट एंड द पेरेंट देयर इन्वॉल्वमेंट इन वेस्ट कि सर ये हो सकता है कभी कभी किसी बच्चे के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, बिकॉज आजकल के बच्चे यू you will never ever guess that what sort of a problem they are into it mentally, emotionally. So यहाँ पर हमें थोड़ा सा we have to take that plunge. शाई स्टूडेंट हो गया, हमें क्लास क्लाउन को क्या करना है, इनकरेज देम टू चैनल देयर एनर्जी एंड ह्यूमर इन पॉजिटिव वेज, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी. आप तो एक काम करो, आप ड्रामा क्यों नहीं करते, बहुत अच्छा कर पाओगे आप, राइट. शाई स्टूडेंट को हम यहाँ पे करो कि बेटा, you might have come across the certain kind of students, if you ask them to give the introduction, they won't be able to tell about themselves as well. Even if you ask about ki, what is your meaning, like suppose my name is Preeti and I will say ki, what is the meaning of my name, पता नहीं घर वालों ने रख दिया. सो छोटा छोटा सा स्मॉल कॉन्वर्सेशन, you just let them, okay बेटा कल अपने नाम का मतलब, because this is the prime most important fundamental information that you should have, that you should know the meaning of your name, that what does it stand for. स्ट्रगलिंग रीडर को हो गया एक्स्ट्रा सपोर्ट, अगर वो इफ दे आर गोइंग थ्रू द समरी ओनली, लेट देम जस्ट नो द समरी ओनली, बिकॉज इफ दे विल हैव दैट इंटरेस्ट इन नोइंग दैट समरी, एक दिन वो बुक भी वो जरूर पढ़ लेंगे. किसी की बुक, जैसे हम पता ना कि सपोज करो दैट हमें ये बता, यार वो दैट इज अ वेरी नाइस प्लेस, क्यों है भाई अच्छा प्लेस, वहां पे ना यू विल गेट सो मेनी थिंग्स एज दैट एट रीजनेबल रेट्स. सो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वी आर एसेंचुएटिंग आवर इंटरेस्ट इनटू दैट. और अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो डेफिनेटली आप देखोगे कि हम उस प्लेस पे जरूर जाएंगे. तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर बच्चा आपको ये कह रहा है कि समरी सुना दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं बेटा, बहुत गुड, वेरी गुड, एटलीस्ट यू पुट योर एफर्ट. बच्चे को समरी में इंटरेस्ट आने लगेगा तो बच्चा पूरी बुक भी पढ़ेगा. आपके बच्चे ने, आप अब कहेंगे कि मैथ्स फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके बच्चे ने थोड़ा सा करा है, वेरी गुड, आपने बहुत किया है, बट यू कैन डू बेटर, राइट. एकदम से ये क्या किया है, आधा ठीक है, आधा तो किया ही नहीं है, तो द इंटायर स्पिरिट विल बी डैम्पन. डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स को क्या होगा, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ देयर डिस्ट्रैक्शन, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड स्ट्रैटेजीज. स्पेशल नीड वाले बच्चे को थोड़ा सा आपको उसमें साइकोलॉजिस्ट या जैसे काउंसलर होते हैं स्कूल में, उसमें उनकी हेल्प जरूर आप लेंगे. क्योंकि क्या हो जाता है, दिस इज अ वेरी, आई वुड से दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेजाइल सिचुएशन फॉर अस एज वेल. नीदर वी कैन वी कैन डील विद देम द वे वी आर डीलिंग विद द अदर किड्स, और नॉर वी कैन लेट देम जस्ट लाइक दैट. तो यहाँ पर आप उस बच्चे को रिकॉग्नाइज कीजिए, यू जस्ट लेट द पेरेंट्स नो, यू जस्ट लेट द काउंसलर नो. उसके बाद रेस्ट ऑफ द ड्यूटी इज ऑफ अ काउंसलर और द पेरेंट्स. फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी आपको अपने आप को प्लंज लेना है, बिकॉज समहाउ दैट वी आर कीपिंग. आजकल अगर टीचिंग की जॉब अगर हम देखे जाए तो टीचिंग की जॉब इज इक्वली रिस्की एज वेल. यू नेवर नो, बिकॉज ऑफ दिस सो मेनी रूल्स एंड सो मेनी इमोशनल restrictions. तो हमें अपने आप को भी सेफ रखना है, that when it comes to involving some psychological or some medicinal things, so we will have to keep the parents and the management into the loop. We can't take the decisions ourselves. नर्ड होते हैं, वेरी आई वुड से टेक्नोलॉजी ड्रिवन पीपल, कि ये वाला कर दिया, उनसे आप कितना ही आप बात करोगे ना कि भाई अच्छा एक ठीक है, मेरे को पीपीटी बनानी नहीं आती है, यू जस्ट बिकॉज again it reminds me one of long back I was the class teacher of a commerce student, so I used to have the financial, अभी मेरा 1600 rupees that I put it into shares, वो मुझे उन बच्चों ने ही सिखाया था. They taught me that how to invest money, because one day that I went for substitution period and they taught me that ma'am this is how that you can do it,
right? So I have learned so many strategy from the children only, that whatever I'm telling you, believe me that I'm not, just reading through any of the books, because I have decided in the very beginning that I'm just talking about the practical ways. Because when it comes to, just getting the abstract way, Google is here, you may go everywhere, chat GPT is there, you put the question, you will get the answer. But no, I really wanted to be very personal with all the tactics and with all the strategies, because if these strategies had worked for me, they are surely going to work for you as well. Please say that these strategies are making a way with you. Write it. I'm reading your message. Please write it, because this way I am also getting a kind of uh, uh, you know put your questions. Okay, what I want is that when we are together, I want to respect your money and I want to respect your time as well. So this is how that I am just planning to give you something practical, readable, nahi dungi main, some relatable or practical that I would advise you. आप बच्चों को एरिस्टोटल मेथड ऑफ क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन दो, आप उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन दो। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, दैट सपोज जैसे अब फॉर एन एग्जांपल अगर आप एनईपी की बात करें तो एनईपी वर्क focuses on the CBQ, competency based question, where competency based question क्या होता है, wherein the rote learning will not come for the rescue, wherein the children will have to decide spontaneously that what could be the answer, राइट। यहाँ पे थोड़े से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगी, जो रूल बेस्ड है, लाइक मैथ्स हो गया है आपका। यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट की भी बात करूंगी। अगर आप छोटे बच्चों के साथ डील करते हो तो उनको कि बेटा द कैरेक्टर, he helped the person, right? The person did not help him back, so who was bad, who was good, right? Now of course the child will answer, ma'am, who did not help, the person was bad, right? Say yes, no. Will they answer the same? Right. So they will answer that, ma'am, the person who did not help, that was bad. राइट, बिकॉज अब तक हमें उन्होंने यही सिखाया है, अगर कोई अच्छा हमारी पसंद का काम होता है दैट इज गुड, अगर हमारी पसंद का नहीं हो रहा है दैट इज बैड। नो, अब ये नहीं सीखे, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एज वेल। यहाँ पे वी आर गोइंग टू आस्क हिम फर्दर, बेटा डिड यू रियलाइज दैट व्हाई कुडंट ही हेल्प द पर्सन बैक, मे बी दैट ही हिमसेल्फ वाज struggling with certain problems, maybe he himself did not have the financial property at that moment so that he could help his friend further. Did you go through all the circumstances and situation of that person? Maybe he wanted to help but he was restricted by something. जब आप उनसे ऐसे करोगे, हाँ मैम, yes you were right, because the story also talked about that the other day his wife asked him to bring the food but he couldn't bring. तो यहाँ से when you ask that open ended question, the child will also take a deep dive into the real scenario. अब उसको वो बंदा बुरा नहीं लगेगा। बट yeah ma'am, now I agree कि when the person he himself did not have anything, how could he have helped the friend? तो हमें उसकी थॉट प्रोसेस को वहां तक लेकर आना है कि वहां पर that he'll start taking the different variation into the consideration, situation into the consideration, and the consequences into the consideration, and then he will make a statement. Am I correct? Yes. Now you have to also you have to understand your class, you have to understand your children, what sort of a children you have, whether you have slacker, slow learner, uh, you know
quick learner, or maybe the newbies in your class, maybe the class clown, the teacher's pet, and you have to different them. Get in touch with their parents as well, like after giving so many feedbacks and after giving so many intervals, like at intervals, and still the child is not bringing any improvement. So you just better get the parents into the consideration. Make a call to the parents, sir, I have done my bit, what about yours? Yes. Generally, and try to award them tangibly. Like एक तो होता है कि very good, okay, let's do one thing. If you have won that competition, na, that I'm sending you to so and so school, and you won, believe me that I'm going to give you something tangible. आप ऐसे करके बोलोगे ना तो ना, एंड आई एम कीपिंग दैट सरप्राइज। तो जो टेंजिबल चीज होते हैं ना, उनका तो इम्प्रेशन हमारे पे भी बहुत अच्छा होता है। लाइक सपोज दैट इफ यू टॉक अबाउट द इन फैमिलीज एंड somebody is coming with a gift, somebody is coming with appreciation, oh you have done good Preeti, that's right, okay, thank you, that's it. But if somebody is like my mother is coming with a sort of watch, because I'm crazy for watches, and she's coming with the watch and she's saying, Preeti, well done, this is for your gift. So I'll be more than happy, right? Because this is a kind of human psychology. That, am I clear? Agree? So just try to give them a tangible gift. ऐसा नहीं होगा कि बार बार होगा that how are we going to afford it every time, because we are teaching 4 classes, right? No. लेकिन हर बार ये ऐसे बच्चे भी नहीं होंगे ना। मैंने क्या कहा कि every child needs a different strategy. So हर बच्चे के लिए दूसरा। So अगर धीरे धीरे ऐसा है that we can approach the management as well, कि बच्चे they are doing so good, so we can also have certain things and tangible rewards into the place. Yes. This is very nice, that how to maintain order in the class, because whatever strategy that I've told you, until unless that you manage the classroom, matlab you'll not understand, that you'll not bring the order in the classrooms, so everything will go back into the vein. So यहाँ पर हमें we have to work upon two strategies: proactive approach, right, and reactive approach, right? Proactive approach and reactive, in a very layman simple language that I'm going to address this. Proactive approach, that that this child is indisciplined. Yeah, you are just bringing that child to certain, maybe that you are going to a tour excursion, आपको पता है ये वाला बच्चा can create a problem, right? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, that what you have to do it, आपको proactive measurement रखने हैं। अगर ये ऐसा करेगा, या मेरे I have to be watchful to that child as well, this can bully the others. So यानी आपको mindset क्या है, your mindset has to be alerted in that way कि ये मेरा बच्चा ये कर सकता है। proactive आपको अप्रोच रखनी है। रिएक्टिव क्या होता है कि while something has done, तो आपके उसके consistent consequences, एक phrase है, I must say that consistent consequences. Generally what mistake that we make है, तुमने ऐसा किया ना, I'll punish you. बच्चे ने ऐसा कर दिया, right? We don't say anything to that child, ठीक है एक बार कर दे, नहीं, right? उनसे आप कहिएगा स्टार्टिंग में ही, ask them to put certain rules. जब वो रूल्स है, बेटा आप अपने रूल्स खुद डिसाइड करो, I'll just have a look on the rules. आप देखोगे जब आप ये वाला काम बच्चे को दोगे कि हाँ you just decide rule for your class, और उसी रूल में सारे रूल अगर नहीं बच्चे फॉलो करते, आप कहते बेटा I was not the one that who has decided the rules for your class, you all have decided by being mutually agreed on the rules. Now that you are bypassing the rules, what do you think, what should I do? We have decided the punishment as well, that I'm going to let your parents know, I'm going to let the principal ma'am know, right, principal sir know, that now what should I do? अगर आपने कि मैम this time no बेटा sorry, this is for everyone. यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है। अब स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस बच्चे को सॉरी बोल दिया है तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल मैम के पास चले गए हो। डेफिनेटली द चाइल्ड विल फॉलो यू, बिकॉज द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड दैट यू हैव definitely going to the principal, you are going to approach the parents as well, child will come to you। तब आप वहां पर कहना कि this time yeah I am not taking any action, but believe me I will surely do।
तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर आप उसको बोलोगे तो वो नहीं करेगा बच्चा. So now we are open for the questions as well. Proactive or reactive approaches, you'll just keep remembering these two approaches, right? Ki whether I need to be proactive or reactive. Yeah, because you are the one that who can decide yourselves ki this is the stage for being proactive and this is the stage for being reactive. Because generally हम क्या कर देते हैं, हम proactive में ही reactive हो जाते हैं. We did not try anything and we started, showing our reactions. Always give a stage ki this is proactive stage, and after that is a reactive. Twinkle ma'am, can we open for the questions? Yeah, please, Preeti. Yeah, please. Yeah, everybody, you can unmute yourselves and that whatever question that you have. So because that again, I would reiterate that fact that we are on this platform wherein we can sort out the each other's problem or the confusions by mutually disagreeing, mutually discussing. You may take up any incident of your class, any school, anywhere, any anecdote you might have come across. Good evening, ma'am. May I? Yeah, sure. Yeah, please. Ma'am, I'm Rekha Jayakumar from Sadhu Vaswani Gurukul School, Manjari, Pune. I had a problem facing a child. This child is very, hyperactive, not ready to sit in one place, and not ready to write. Okay. So, it was very difficult, for all of us to make him sit, make him write, and, learning was too far away. But, with the help of buddy system, as you told, you can always make such children sit with the child who is bright, who is willing to help the such children. So we also tried this, and to some extent, I would not say that I have, tried to improve him a lot, but to some extent, he has at least started sitting in one place and trying to complete in his work. Though his handwriting is very, you can say, we can't even read it. I will not say it's very shabby. So little bit of improvement is there. So I would like to know what else I can do so that I can improve the child. Okay. You can have a private conversation with the child and you can tell you certain strategies. The way you told me that he's not good at reading as well. You can say, ki beta, I know that you like potential within, but the only problem is that you are not letting it to be shown to us. So what you have to do is every day that stand, in front of the mirror and read for 5 minutes only, and read as loud as you can. Right? So now children will not understand it, right? I know for a fact. Now additional information you have to put. See, I know that and when you read, you will have saliva in your mouth, right? The liquid substance, right? The Yes. day the saliva will stop coming, right? Will vanish. It means that you have achieved one target. And now you just tell me the day, right, that when that you'll stop having that saliva while reading. Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So you will just, if I'll say simply say, you just also stand in front of the mirror and just read newspaper for 5 minutes, right, as loud as you can. One day the child will do it, another day the child will not do it. Now put additional information, because I know that once you'll read it, you'll have this saliva. So, right, this is the task. Tell me the day that, ma'am, after 10 days, now that I'm not getting that saliva collected in my mouth, now then we will talk. So now the child will have some unusual stuff every day that he'll go. But the byproduct is that gradually that he's working on reading skill. One thing is that Right. for sure. Right? Is it making a sense? Yes, ma'am. Yes, I'll definitely try this and get back to you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Anyone else wants to ask something? Yes, ma'am. Yeah, please.
Hello, am I audible? Yeah, Yeah, Vijay ji, you are audible. Please tell. मैम मैं ह्यूमैनिटीज की क्लास लेती हूँ तो आई एम द क्लास टीचर ऑफ क्लास 11th. There are 3 students, boys, who are not interested to learn humanities subjects. So they create so much chaos in the class. So how I should deal with them? Okay, what do you teach? Ma'am, political science. Political science, right? I'll tell you the ways. Because when it comes to the humanities teachers, right, we need to make them understand the importance of all the subject, related to the humanities. For an example, that we keep bringing out certain example in the society, and like through the people, like who are quite known to us. Just for an example, जैसे मैं जाती हूँ तो क्या करते हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी है, right? Everybody knows who Arnab Goswami is. Hmm. Right, so we should give the example. Do you know Arnab Goswami, right? He has not got his education in journalism. He was good at spoken only, right? So wo spoken mein acha tha, and that is how that when he was times with the Times Now, how much he was earning? He was earning 1 crore rupees monthly salary with other perks, right? And किसके थ्रू? सिर्फ only the art of communication. So there, हाँ, यहाँ पर आपके वाले में तो आप believe me ma'am, information asymmetry will come into the place every day, that you have to tell them something unusual stuff. For an example, if you'll talk them, Mike Tyson, the world most famous wrestler. Who doesn't hear about Mike Tyson? And Trump as well. सबने ट्रम्प के बारे में सुना है. हमें पता, आपको पता है बेटा, Trump used to be Mike Tyson's accountant sort of a person, and now see, Mike Tyson is a bankrupt, and you can see the Trump, Donald Trump, right? So this way they will understand. Humanity के बच्चों को ना थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है. Humanity जैसे क्या होता, अच्छा मैम I जैसे am कि just, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मैम हमसे नहीं हो पाएगा, हम बस हिस्ट्री की वजह से ही कॉमर्स शिफ्ट करना चाहते हैं. अच्छा, हम्म. आप एक बार उनको ये बोलिएगा कि तुम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, आपको पता है कि यूएस में हिस्ट्री की कितनी डिमांड है, राइट? अगर आप हिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहते हो, यूके में कितनी डिमांड है हिस्ट्री की रिसर्च. आप हिस्ट्री को, व्हाई आर यू टेकिंग द हिस्ट्री विद ऑल अबाउट द डेट्स एंड द वॉर्स Yes, ओनली, exactly. है ना? Yes, yes. व्हाई डोंट यू टेक इट दैट हाउ हिस्ट्री इज मॉडिफाइड. आपको बताओगे, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, दैट इज फॉर द एग्जाम पर्पस, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा. बट अगर आपको हिस्ट्री में सब कुछ जानना है ना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आर द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इफ यू लर्न देम, यू विल लर्न टू लिव रिस्पेक्टफुली इन द सोसाइटी. क्योंकि आपको पता चलेगा हिस्ट्री इज नॉट दैट व्हाट इज इन द बुक. आपको ये इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा. 2-4 बातें आप उनको ऐसे ऐसे बोलोगे ना, कि आपको पता है कि हिस्ट्री, आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ो, जो हमारी हिडन हिस्ट्री है, आप उस पर रिसर्च करो. I think motivation and the examples are the best things for them, no? ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए ओनली दीज 2 थिंग्स विल. आप उनको Yes. जैसे थोड़ा सा लिखने के लिए दो. अच्छा, आप हिस्ट्री को लगाओ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट द हिस्ट्री एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट द अदर सब्जेक्ट. तो उनका मेजरमेंट करो, एक चेकलिस्ट बना लो, और फिर उसके बाद देखो कि उनको हिस्ट्री की कौन कौन सी चीजें पसंद नहीं है और कौन सी चीजें पसंद है. Okay, ma'am. Anyone else? Riti, now we can wind up the things if Yeah, please, anybody, if you have any question, let me know, because I would be more than happy to help you out in that way. And I would, request you with all my heart involved into it, kindly, that whatever strategy and whatever techniques that I've told you, just make the practice of these activities and make this practice of these strategies in your class. And I'm not saying that you will see the changes in 1 week, but yes, for sure, you will see the changes in students' approaches and behavior, and you will be good at managing your class so well. So Twinkle ma'am, are we giving them any kind of a feedback wherein they can put together? yeah, I will be sending the feedback form Ma'am, if we are I done with have a the question. questions. Yeah, please. मैम, मैं क्लास 8 में मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को जनरली इक्वेशन सॉल्व करने से बहुत डर लगता है. एंड उनको ना बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, ये इक्वेशन बहुत काम आ सकती है आगे सॉल्व करने के लिए भी, स्टिल उनको ये फियर होता है. हाउ टू से सम, मतलब मैं उन्हें क्या बोलूं कि वो फियर उनकी उधर पर से निकल जाए, एटलीस्ट वो ट्राई तो करें.
मैं बताती हूँ इसमें। इसमें आपको क्या करना है कि व्हेन इट कम्स टू मैथ्स का ये कि अगर बच्चों को कोई एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो दे विल हैव दैट इंटरेस्ट लाइफ लॉन्ग, और अगर मैथ्स का ही कोई अच्छा टीचर नहीं मिलेगा तो चिल्ड्रन विल टेंड टू लूज द इंटरेस्ट इनटू इट। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैथ्स बट आई कैन टेल यू, माय सन इज 7th क्लास, राइट? सो वन डे दैट ही केम टू मी एंड ही सेड इट कि मैम, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता व्हाट वाज द टर्म, कि एक टीचर आए थे हमारे में, सीनियर क्लासेस के थे, एंड ही टोल्ड अस कि एक नंबर सोच के रख लो, ही सेड इट लाइक दैट, फिर उसका दूसरा नंबर सोचो, फिर उसमें आप 2 प्लस कर दो, फिर उसमें आप 3 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर ये होगा। एंड हमने किया, वी डिड इट, एंड यू नो द सर कुड इजीली, you know, that he could easily guess it, that what would be the answer, right? तो हाँ मैं आपका क्वेश्चन एड्रेस करूंगी अभी। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उन्हें थोड़ी थोड़ी सी Yes, टेक्निक ma'am. ऐसे बताओ, जैसे एक और हमारा ये हुआ था, जैसे हम लेडीज हैं दैट वी आर सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स दिस सेल, राइट? तो एक वर्कशॉप में मैंने सुना था कि उन सर ने बताया, जैसे होता है ना कि आप एक शर्ट लेंगे तो उस पर आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा, और आप दूसरी पे लेंगे तो वो आपको, मतलब ये लगा लीजिए कि अगर 1200 की है तो वो आपको 600 में पड़ जाएगी, कुछ इस तरह का। मैम ओरल क्वेश्चंस में वो एंगेज करते हैं, आंसर भी करते हैं, बट एक्चुअली होता है क्या है, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं, तो वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि ये तो बिल्कुल हमसे बन ही नहीं रहा है, ये हमसे आ ही नहीं रहा है। तो उन्हें कंटिन्यूअस मोटिवेट करना भी एक टफ हो जाता है। बिल्कुल हमने होता है। दोबारा किया, तिबारा किया, फिर उनको फिर से मतलब चाहती हूँ कि ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, मतलब दे शुड नॉट स्किप द क्वेश्चन और दे शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग। हम्म। यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा, आपको व्हाट्स योर नेम? मैम रिचा। रिचा मैम, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि आपको ना थोड़े न्यूमोनिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट? और वो न्यूमोनिक्स आप कहाँ से लिखते हैं? आप आजकल तो हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आप गूगल करो कि अगर ये वाली जो भी आप सम कर रहे हो, कि व्हाट आर दी अदर वेज, व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यूमोनिक्स दैट आई कैन ऐड। न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? शॉर्ट शॉर्ट स्टेटमेंट होते हैं कि अगर वो बच्चों को हम बता दें, जैसे मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ, तो यू नो जब भी एक्टिव पैसिव होते हैं तो मैं कहती हूँ कि ओके डू यू नो द काउंटिंग, मैंने कहा 3 तक काउंटिंग आप करो, चिल्ड्रन से 1 2 3, मैंने कहा देन रिवर्स इट 3 2 1, right? And I say okay, now like you know we are done with the active and passive, this is what we have to do, 1 2 ka 3 and 3 2 ka 1, this is how, right? So in that way ये वाला question yeah, what is this 1 2 ka 3 and 3 2 ka 1, so they'll automatically ना they'll be looking forward। तो न्यूमोनिक्स आप गूगल पे डालिएगा, चैट जीपीटी डालने कि मेरा ये वाला चैप्टर है, what are the all न्यूमोनिक्स दैट आई कैन ऐड, वो बच्चों को आप बताइएगा, वो न्यूमोनिक्स सीखेंगे, they will you know develop the interest। यस मैम, थैंक यू, आई गॉट माय थिंग। Thank you. Commerce student have no interest in reading any English chapter, no to write their own answers. What method can we adopt in making interesting? CBSE, are you talking about? Because CBSE का क्या होता है? If I talk about the syllabus of 11th class English, right? So what happens? That children do not take interest in English. I understand it because I also face the problem. आपको उन्हें क्या करना है कि बेटा, you'll see. Please have a look on all the chapter of English, and you will see all the genres are included in the syllabus. You have history, you have mystery, you have science, you have fiction, you have travelogue, all right? You have imaginations, you have astrophysics, right? So this way, now when you use certain words now, you just look at the chapters, and I told you, you need not to read the chapters, but what I want is you just bring out the crux of that chapter। आपने खुद ही जब आप ये भूमिका बना दोगे ना कि चैप्टर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो कहेंगे अरे मैम इज नॉट समथिंग रिलेटेड पुटिंग फोकस ऑन लर्निंग द चैप्टर। फिर मैं कहूंगी बेटा यू नो व्हाट मैसेज दैट यू आर गेटिंग इट, तो वो मैसेज पे फोकस करेंगे, क्योंकि इन एवरी क्लास दैट चैप्टर्स आर चेंज्ड। कॉमर्स का स्टूडेंट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, दे आर नॉट यू नो इनटू द लर्निंग मोड फॉर इंग्लिश एज वेल, बट आपको कहते हो कि मुझे सिखाने ही नहीं चैप्टर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट हाउ मदर्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू नो you have your mothers important to you as well, everybody has their mothers important to them as well, so I but you know थोड़ा सा हमें सिचुएशन को करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें कहना कि just bring me the message। क्लास 12th कॉमर्स, अच्छा
आपने मुझे लगा 11th that must have no interest in reading and English chapters more. Okay. आप उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट ये कह के कर सकते हैं कि nowadays CBSE is giving the CBQ. CBQ, and for an example, I'll tell you that there are 2 characters in the chapter, and one character is a hero for me, another is a villain. Right? One character is hero to me, but the same character is villain to other. Up both are both the answers are correct. But how CBSE is taking the answer, the way, the kind of justification that you are providing, why the so and so character is a hero to you and why the same character is a villain to somebody else, right? तो आप उनको जब आप ऐसे करके बोलोगे कि क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग द वे दे आर रिटन एट द बैक साइड ऑफ द पेज, राइट, दे विल नॉट, so somehow they gradually they'll develop the interest. Because how do I start? I started, the literature is so good in 12th class. Each and every chapter that you will relate to yourself, मैंने उसकी भूमिका बना दी. अब बच्चों को क्या होगा कि every time whenever they are opening some chapter, they will always be looking ahead, by relating this chapter to themselves. यार प्रीति मैम ने बोला था कि ये चैप्टर तो तुमसे रिलेट करेगा, this chapter will relate to your family as well. तो वो उस चैप्टर में क्या है, they will try to look that substance in that chapter. I think, Preeti, all the questions has been answered now. So I hope that everyone, that I can hope that I have answered your questions as well to your deepest satisfaction. Yeah. Thank you. Yeah, Preeti, thank you very much for such an engaging and interactive webinar. I hope so. Everybody has learned many things now. Thank you. Yeah. And I will be sending the feedback form in the group. Please register the same. Okay, Preeti. Thanks Okay. a lot for such a nice webinar. Thanks you. a lot for your time. Okay. Thank you, everyone. Have a nice evening and good night as well. Thank you. Thank you, ma'am.